Hello, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, and good evening. How are you all doing that side? कैसे हो? सब बढ़िया. So first of all, very apologies from my side. Really deepest apologies from my side for this too much of delay in getting this video. So lot of development happened this side. On 28th, I had my examination, appeared for civil service pre-examination, and I'm anticipating good results there. So I'm fingers crossed. So, because of that, I could not make this video for you guys. So really sorry on that front. Let's get started with our rest of the 40 questions. As far as English paper of CDSE 2023 first session of the examination is concerned. So let's start with the close composition. Okay. So 81 है, कहता है, it is necessary dash in regard to any war to consider not its proper justification in past agreements dash and its real justification in the balance of good which it is to bring to the mankind. Okay. So it is necessary dash in regard to dash to. It is necessary connecting to. Okay, connecting to. लग नहीं रहा है सही होगा. It is necessary describing to any war. Describing to any war क्या होता है? It is necessary linking to any war to consider. No. So very good chance 81 का आंसर ये होगा. It is necessary in regard to any war to consider not its proper justification in past agreements. Dash, but its real justification in the balance of good, unless its real justification in the balance of good, until or unless तो होगा नहीं. ठीक है, तो कह रहा है कि it is necessary in regards to war, regards to any war, to consider not its proper justification in the past agreement. सिर्फ past agreements का justification को consider नहीं करने का, and its real justification in the balance of good which it is to bring to the mankind. ठीक है, but its real justification. ठीक है, तो होगा आपका आंसर कि सिर्फ इसका जो है प्रॉपर पास्ट एग्रीमेंट्स को सिर्फ नहीं जस्टिफाई करने का, रियल जस्टिफिकेशन भी जो इसका है वो भी अनर्थ करने का कोशिश करना. ठीक है, तो इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड्स टू एनी वॉर टू कंसीडर नॉट इट्स proper justification in past agreements, but its real justification in the balance of good which it is to bring to mankind. ये सच में mankind के लिए क्या अच्छाई लेकर के आ रहा है, इसका ये सेंस बना रहा है. At the beginning of a war, each nation under the influence of what is called dash. ठीक है, अब कोई भी नेशन हो, नेशन के खुद के जो उस नेशन में रहने वाले आदमी है, जो इंसान, ठीक है, तो क्या होगा, वो किस चीज के इन्फ्लुएंस में? डिसलॉयलिटी, इनफिडिलिटी मतलब बीइंग ए ट्रेटर. ठीक है, धोखेबाज. ठीक है, तो इनफिडिलिटी मतलब जो गद्दार ऐसा. फॉल्सनेस नहीं. ठीक है, under the influence of what is called patriotism, believes that its own victory, कि उनका खुद का victory is dash. ठीक है, dash certain and of great importance to mankind. ठीक है, certain भी है and great importance to mankind, मतलब उनका जीतना certain भी है और उनका जीतना जो है mankind के लिए अच्छा, बहुत अच्छाई वाला बात भी है. ठीक है, मतलब मैनकाइंड को के काफी इंपॉर्टेंस के लिए है इनका जीतना, ये क्या है. ठीक है, तो आपका होगा नेशनली नहीं, इंडिविजुअली बिलीव दैट इट्स ओन विक्ट्री इज इंडिविजुअली सर्टेन मे बी, बट दिस इज अ वीक वर्ड टू इंक्लूड हियर. ऑटोनोमसली मतलब भी खुद से, बट देन स्टिल इट इज वेरी वीक हियर. ठीक है, यहाँ पे होगा बोथ. ठीक है, बिलीव दैट इट्स ओन विक्ट्री इज बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड. The praiseworthiness of this belief, ठीक है,
the praiseworthiness of this belief, मतलब in simple language, the merit of this belief has become an accepted maxim of the common sense. ठीक है, कि ये जो है common sense का normal accepted maxim बन गया है, सिद्धांत बन गया. ठीक है, even when war is actually in progress, it is dashed to be natural. ठीक है, even when the war is actually in progress, even when जब भी war अगर हो भी रहा है तब, ठीक है, it has been withheld. ठीक है, it is held. ठीक है, it has been withheld. It has been. ठीक है, it has been क्यों हुआ, क्योंकि it has become. ठीक है, we are just maintaining the continuity of the tenses. ठीक है, even when the war is actually in progress, it has been withheld to be natural and right that a citizen of an enemy country, ठीक है, ऐसा ये चीज सही माना गया है और नेचुरली माना गया है कि जो सिटीजन है किसके, एनिमी कंट्री के, शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज assured एंड हाईली डिजर्वेबल. ठीक है, कि ये ऐसा जनरली हम लोग, मतलब मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया का इसमें जीतना, और मतलब यहाँ के सिटीजन्स को हम ऐसा मानते हैं कि जो पाकिस्तान के सिटीजन है उनको ऐसा मानना चाहिए कि हमारी जीत जो है पक्की होगी, नेचुरल होगी. ठीक है, और हमारी जीत जो होगी पक्की होगी. ठीक है, और यही होना भी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं. ठीक है, इज हाईली डिजरेबल. क्या अनप्लेजेंट, खुद की विक्ट्री अनप्लेजेंट कैसे हो गया, अनलाइकली भी नहीं, मलाइनिंग भी नहीं. ठीक है, तो by concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side. ठीक है, ठीक है, by concentrating attention upon the supposed advantages. ठीक है, मतलब खुद के जीतने का जो भी एडवांटेजेस होता है उस पे अटेंशन जब हम लोग करते हैं. ठीक है, we dash more or less blind to the evils inseparable. ठीक है, inseparable from war. ठीक है, मतलब जब हम लोग ऐसा खुद की विक्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, तो by concentrating attention upon the supposed advantages of the victories of our own side. ठीक है, मतलब खुद जीतने की मेरिट को हम लोग इतना जस्टिफाई कर देते हैं कि we become, we becoming more or less, नहीं, we had become more or less blind, no, we have been becoming, हाँ हो सकता है. ठीक है, but we become, this is a more better form. ठीक है, अगर आप देखोगे तो supposed advantages, ठीक है, concentrating attention. ठीक है, तो it's like we are just kind of continuing in the tense that is being used before. ठीक है, we have been becoming, मतलब ये थोड़ा सा फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला सेंस आ जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो we become more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain. ठीक है, हम लोग equally certain हो जाते हैं, मतलब sure हो जाते हैं, whether whichever side may ultimately prove victorious. ठीक है, whichever side may ultimately prove successful, thriving, victorious, failing. ठीक है, so we become more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove victorious. ठीक है, फेलिंग की तो बात नहीं करें, सक्सेसफुल भी ठीक है, यूज हो सकता था, बट देन victorious is a more in context with war and also. Successful is not the answer, thriving is also not the answer. Okay. यहाँ पे फुल स्टॉप है, आगे बढ़ते हैं. Yet so long as these are not fully realized, मतलब yet, जबकि, ठीक है, जब तक कि इन सब चीजों का अगर वॉर जब हो रहा है तो उनका आउटकम जब फुल्ली नॉट रियलाइज, जब तक उनका आउटकम सही से पता नहीं चल जाता. ठीक है, इट्स नॉट फुल्ली रियलाइज, इट इज इम्पॉसिबल, टू जज. ठीक है, justly, मतलब fairly, dash, a war is or is not likely to be beneficial to the human race. ठीक है, कि जब तक ये fully realize नहीं हो जाता है, जब तक कि हम लोग इसके end conclusion पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये
जस्टली जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि सच में कोई ह्यूमन रेस के लिए कुछ बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वेदर whether a war is or is not likely to be beneficial to the human race. Okay. Therefore, a war is or is not likely. However, a war is or not likely since नहीं होगा, ठीक है. Although the theme is trite, it is necessary, therefore, briefly to remind ourselves what the evils of war really are. ठीक है. हाँ, ये थीम जो है काफी ट्राइट मतलब कॉमन प्लेस, मतलब क्लीशेस, काफी बार इस चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो उसका मीनिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बात का पतंगड़ बना देते हैं। तो बेसिकली दिस सो ये जो थीम है ये पूरी की पूरी वॉर, किसका जीतना और अपोनेंट्स की साइकोलॉजी और साथ ही साथ की वॉर का बेनिफिट्स लाना ह्यूमन रेस के लिए, कि ये सारे कॉन्वर्सेशन जो है काफी कॉमन प्लेस है। और इसलिए इट इज नेसेसरी देयरफॉर ब्रीफली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द इविल्स ऑफ वॉर रियली आर। तो हम लोगों को ये चीज रिमाइंड करने की जरूरत है कि वॉर क्या क्या इविल्स लेकर के आते हैं। ठीक है, इमोशनली नहीं घुसेंगे क्लोज टेस्ट में। ठीक है, आवर ओनली इंटेंशन इज और ओनली जॉब ओवर हियर इज टू इंश्योर दैट कि सही से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर, लेडीज एंड जेंटलमैन। और just one thing, if you haven't liked, share, subscribe, and like basically show some love to our channel. Okay, want you to like, share, and subscribe. Okay, if you have any feedback, if you want me to improve upon something, please share in the comment below. I'll be happy to incorporate that. Okay, आगे बढ़ते हैं, ladies and gentlemen. Preposition and determinants. Steve has gone away. He'll be away dash Monday. ठीक है, कह रहा है कि Steve has gone away. Steve चला गया है, ठीक है, and he'll be away कब तक? ठीक है, until Monday. ठीक है, he'll be away until Monday. ठीक है, he'll be away from Monday, by Monday, on Monday. He'll be away on Monday. No, ठीक है, फ्यूचर की बात हो। ठीक है, तो until कब तक? ठीक है, आज मान लो कि वो संडे को वो कहीं गया, ठीक है, कह रहा है कि मंडे तक अवे रहे। ठीक है, मान लो फ्राइडे को गया और कह रहा है कि मंडे तक अवे रहेगा, मंडे को आएगा। ठीक है, ठीक है, आपका आंटी आई सी यू टैक्स फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, तो कह रहा है 92 में आई सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, आई सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। In Friday morning, no, it's wrong usage. I see you along Friday morning, wrong usage. At Friday morning, wrong usage. Write your name dash the top of the pages. Okay. Write your name at the top of the page. मान लो ये page, ठीक है, तो top of the page, let's say it is the top right corner. So you are writing at the top right corner. ठीक है, at the top right corner. ये सारे ऐसे आपको याद रखें। ठीक है, इसका कोई रूल्स नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मतलब आपको ल्यूसिडिटी से पता चलेगा with how much ease you are able to tackle. Okay, so for example, if you just use over here, write your name with the top of the page, तो absurd लग रहा है। राइट योर नेम इन द टॉप ऑफ द पेज, यस, इन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि, तो ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि टॉप ऑफ द पेज जब आता है तो वहाँ पे इसका यूजेज एट आता है। ठीक है, अगला देखते। ठीक है, सोहन इज स्टडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन और एट में बहुत कंफ्यूजन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना हो इस चीज को कि सोहन इज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, maybe the conversation over here is that कि जो लोग वहाँ पे नहीं, ठीक है, समझे, मतलब 3-4 लोग बाहर हैं, यूनिवर्सिटी में मान लो, तो बाहर से बात। ठीक है, इसका नाम है सोहन, इसका नाम है मोहन। ठीक है, तो मोहन कह रहा है कि सोहन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा वाला से
बट अगर वहीं पे मान लो कुछ दो लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है, ये सुवन और ये मोहन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन द यूनिवर्सिटी का यूज है, ठीक है। तो आपको ल्यूसिडिटी से समझना है, लाइक हाउ इजी यू आर एबल टू आर्टिकुलेट इट, हाउ इजीली यू आर एबल टू स्पीक इट आउट, okay. You will see the kind of lucidity in your speech, okay. So this is why I tell you not to become a grammar Nazi, okay. You don't have to become a Shakespeare over here. Our goal, our aim over here is to get 70 out of 100 marks, okay. For that, we'll have to, attempt close to 110, 115 क्वेश्चन जो हमें कट पीट करके 70-80 मार्क्स, 70-75-80 मार्क्स दे जाए, समझे ऐसा। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ही इज इनडेटेड डैश हिज फ्रेंड, ठीक है, ही इज इनडेटेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, इनडेटेड टू, ठीक है। प्रीपोजिशन याद कर लो, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसके रूल समझने, जितना आप रूल समझोगे उससे बेहतर उसको याद कर लेना ज्यादा आसान है। 96 है, कैन आई बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल डैश माई स्पाउस डेट्स, कैन आई बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, responsible for, can I be held responsible for spouse debt, responsible to, हाँ हो सकता था, ठीक है, मे बी, बट responsible for में ज्यादा lucidity, ठीक है, इसलिए responsible for my spouse's debts। 97, it was fun to hang out dash the pyre, ठीक है। बेसिकली पायर क्या होता है, ठीक है, मान लो ये समुंदर है, ठीक है, समंदर है, ठीक है, समंदर के ऊपर ना एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, समुद्र के ऊपर प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये मान लो आपका मेन लैंड है, ठीक है, ये मेन लैंड है, ठीक है, ये आपका पूरा समुद्र है, ठीक है। मतलब बस ये समुद्र के ऊपर ना यहाँ पे इंसानों को चलने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, मजे लेने के लिए, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म बना देते हैं समुद्र, ठीक है, तो उसको कहते हैं पायर, ठीक है। तो इट वॉज फन टू हैंग आउट बीनीथ द पायर, मतलब यहाँ पे समुद्र है तो आप नीचे तो हैंग आउट नहीं करेंगे, ठीक है। It was fun to hang out down the pier, ठीक है, डाउन द पायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डाउन द पायर का मीनिंग ये नहीं कि नीचे जा करके घूम रहा है, ठीक है। डाउन द पायर का एक सेंस यहाँ पे ये भी है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, तो डाउन द पायर, ठीक है, ये पायर कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है, बेसिकली ये समुद्र से मिला हुआ रहता है, ठीक है। It was fun to hang out down the path, ठीक है। And you can also correct me if I'm wrong. Okay, if I'm wrong, please do correct me in the comment section. Okay, because these are the only out of best of my knowledge, and there is a chance that even I might be wrong. Okay, so please don't get furious on me कि गलत गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। It was fun to hang out with the fire, नहीं, in the fire, okay। आगे बढ़ते, कैन यू प्लीज डैश शुगर प्लीज, ठीक है, तो कह रहा है कैन यू प्लीज, सॉरी कैन यू पास डैश शुगर प्लीज, ठीक है, तो कह रहा है कैन यू पास, अगर शुगर कोई भी शुगर रहता है, ठीक है, मान लो कि कोई बंदा जा रहा है ग्रोसरी के दुकान में, वहां कह रहा है कि कैन यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है, तो यहाँ पे कैन यू पास शुगर ऐसा हो सकता था भी, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मली कोई दो लोग बैठा है, यहाँ पे शुगर का डब्बा रखा है, ठीक है, शुगर का डब्बा रखा है, एक जो दूसरे से मांग रहा है, ठीक है, एक दूसरे से मांग रहा है कि भाई शुगर का डब्बा दे दे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इस शुगर के डब्बे की बात है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर शुगर के डब्बे की बात हो रही है, इसमें यहाँ पे लगा कैन यू पास द शुगर, ठीक है, तो यहाँ पर यूसेज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनर्स की बात आए और बस तीन चीज याद रखना है, ए एन और डी। हालांकि डिटर्मिनर्स और भी होते हैं बट आपको ये तीनों बेसिकली याद रखना है, ठीक है। सो कैन यू पास द शुगर, सो 98 द इज योर आंसर।
आप ही देख रहे हो, कैन यू पास द शुगर एंड शुगर, कैन यू पास शुगर प्लीज। सुनने में भी अजीब लग रहा है, क्या रूडली बोल रहा है किसी को, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा 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 नहीं, ऐसा मतलब सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। इट इज वेरी स्पेसिफिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म नंबर 5 भी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूसेज नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, नहीं होगा। और ट्रेन लीव्स फ्रॉम द भी नहीं होगा, द प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है। इस वक्त ठीक है, ऑलरेडी आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। Question number 100, ladies and gentlemen. As children learns very quickly. Some children learn very quickly. आज children है तो ये का यूज होगा नहीं, ठीक है। Any children की absurd usage है, much children again absurd usage, ठीक है। तो some is your answer. Some children learn very quickly. Okay. Ladies and gentlemen, whoever hasn't no liked and subscribes to our channel, please do that. It was really hard to make this happen for you guys, and I know I made this video like after 8 to 10 days, maybe even more than that. You must appreciate the kind of flux uh, that that we have to go through as a content creator, as an educator on YouTube, and also as someone who has started to teach for the first time. Okay, so we go through a lot of flux. Just request you to like and subscribe, and this will help us get a lot of motivation, and we'll work much extra hard for you guys to make it happen. This is what I mean to. So this is just what I wanted to convey to you all, and except for all this, as far as your paper is concerned, stick to the previous year question model. Solve the previous year questions as many as you can before the examination. With that, only complement your learnings, your preparation, like solve the questions, and along with solving the questions, you learn the concepts that are, behind all the questions that you are solving. That's the kind of approach I recommend. It's up to you whether you want to go for the concept first approach, but my take would be to go for the concept and application, learning concept along with application. That's the approach I want you guys to take. So आगे बढ़ते हैं, ladies and gentlemen. Completion of sentences. They were informed that the inaugural version of the scheme. Okay. They were informed. Okay. Okay. ये है आपका present perfect tense, ठीक है। तो they were informed that the inaugural version of the scheme had 3 parts. Okay. Had 3 parts. Okay. Were informed that it was 3 parts. Okay. तो ये simple past में है, was का usage तो नहीं होगा। Okay. They were informed that the inaugural version of the scheme have 3 parts. Okay. No. There is an inconsistency between the kind of tense that are being used. यहाँ पे past है, यहाँ पे present कैसे, ठीक है। अभी past है, यहाँ पे भी आपको past use करना है, ठीक है। The scheme has 3 parts. No, again rubbish and very intricate uses, ठीक है। So English is a funny language, ठीक है। People say पूरी दुनिया वाली करते हैं, ठीक है। And it's a funny language, ठीक है। Enjoy, ठीक है। You are not supposed to be a grammar Nazi. You are supposed to be lucidity, okay, in the usage of it. Okay. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2. What would you do if you would won a lot of money? Okay. What would you do? Okay, what would you do? Okay.
if you have won a lot of money, okay, हो सकता है. If you would won a lot of money, no, very friction, काफी सारे lucidity तो बिल्कुल भी नहीं. What would you do if you will win a lot of money? You will win a lot of money, not this is not the right usage. Will win would, ठीक है, यहाँ पे past tense है, यहाँ पर मतलब इसका present tense वाला will का use हो रहा है, ऐसा वाला नहीं, ठीक है, मतलब V1 use हो रहा है. Okay. What would you do if you have won a lot of money? So if you won a lot of money, okay, this is your answer. Again, if you have won a lot of money, again, it is complicating the entire sentence. Okay. I would tell. If it stops, if it stopped raining, if it stopped raining, we had gone out. Yeah. We out to go out. हो सकता है, ठीक है, जाना चाहिए, ठीक है. आउट टू का यूसेज जो होता है ऑलमोस्ट शुड जैसा होता है, ऑलमोस्ट शुड जैसा, ठीक है. तो अगर बारिश रुक जाता है तो वी आउट टू गो आउट, ठीक है, और वी कुड गो आउट, हाँ तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है. ये डाइसी है, ठीक है, थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कुड, शुड और आउट टू ये तीनों हो सकता है, बट आउट टू का यूसेज जो है इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है. तो इस इतना कॉम्प्लिकेट बनाएगा भी नहीं आपका सीरियस का क्वेश्चन. तो इसको कम प्रोबेबिलिटी वाला रखते हैं, रख के क्रॉस कर देते हैं, ठीक है. इफ इट स्टॉप रेनिंग, ठीक है, वी शुड गो आउट, ठीक है, ये ज्यादा यूसेज है, सबसे ज्यादा यूसेज है. अगर बारिश रुक जाता है तो हमें बाहर जाना चाहिए, और वी कुड गो आउट, ठीक है. यार जब बारिश रुक ही जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इंटेंशन बना के रखा है कि अगर बारिश रुकता है तो कुछ ना कुछ करना है, ठीक है. वी शुड गो आउट, ठीक है. सो दे मस्ट बी प्रेशर फॉर वी शुड गो आउट, ठीक है. वी कुड गो आउट नहीं, थोड़ा सा डाइसी है, आपको बी और सी में डाउट हो सकता है, ठीक है. एनीवे, इवन इफ यू यूज बी एज एन आंसर, दैट शुड नॉट बी रॉन्ग, बट यहाँ पे आई वुड गो विद शुड, बिकॉज शुड का यूसेज है यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा लगता है, मेकिंग द सेंटेंस मोर यूसेज, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है. much less frictionless than any less of this any other of the sentences. Okay. Let me know if you have any further news here. Yeah, then let me know if you have any further queries. Okay. Each is the lucidity. If you have, if you had any further news, no. Let me know if you has any further news, no. Let me know if you have any further news, no. We stayed at the cheapest hotel in the country. तो मैं थोड़ा बहुत जो ग्रामर बताता हूँ उसको बता दूँ. जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, चीपेस्ट, ठीक है, तो उसके आगे द लगता है, ठीक है. तो ये तो नहीं होगा. He stayed at the cheapest, ठीक है. He delivered the best speeches, ठीक है. तो he stayed at the cheapest hotel in the country, ठीक है. जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो वहाँ पे द का यूज होता है, इसलिए आपका 105 का आंसर होगा सी. जूलिया गॉट मैरिड, ठीक है. अपने लैंग्वेज में जूलिया बोलते हैं, इटली में इसको यूलिया बोलते हैं, ठीक है. तो वट एवर इज द काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन फॉर यू, I mean, we are not bothered about the pronunciation, but anyways, Julia got married as she was. मतलब वो 22 की थी इसलिए married हो गई, no. When she was 22, yes, okay. Because she was 22, 22 की थी इसलिए, मतलब because मतलब she was, मतलब being 22 was the reason that she got married. That is an illogical fact. Okay. तो बड़ा illogical लग रहा है ना कि भाई 22 की हो गई तो शादी कर, मतलब अब वो वाले जमाने में थोड़ी लगा. अच्छा. Julia got married since she was 22. Yes, got married since she was 22. तो वो 22 से married हो गई ना, ठीक है. Julia got married when she was 22. This clear, crystal, crisp, lucid कह रहा है सिंपल से कि वो मैरिड हो गई जब वो 22 की थी. When she was 22, जब वो 22 की थी तब उसकी शादी हो गई. 106 का आंसर होगा बी. Next है 107. What time does this train get
एट लंदन, ठीक है। तो गेट टू लंदन, गेट टू लंदन, अब पे चीज आ रहा है, ठीक है। मतलब कि गेट टू का मतलब होता है कि पहुंच कर रहा है, ठीक है। अब आप वेस्टर्न प्रोनाउंसिएशन में लंदन बोलो और हमारे प्रोनाउंसिएशन में लंदन बोलो, दोनों बात सही है, तो चलता है दोनों, ठीक है। स्पीक लंदन, ठीक है, थोड़ा लेट्स embrace modern little bit. So what time does this train get to London? Okay. Does this train get at London? No. Get in London? No. Get into London? ये are the incorrect answers. ये आपको याद रखना. Get to London. How are you getting along? Getting along. Getting along मतलब how are you surviving? Okay. आपको कैसा ट्रीट कर रहा है? How is your new job treating you? क्या नया जॉब आपको कैसा फील कर रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मजा आ रहा है या फिर रुला ले रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग योर जॉब? सो 108 का आंसर है सी। 109 आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन, ठीक है, कट डाउन ऑन, ठीक है। ये सुनते होगे ना, पढ़ते रहते हो, वो सेलिब्रिटी बोल रहा है आई वाज ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफी, कैफीन, लैक्टोज, व्हाट नॉट, ठीक है। तो कट डाउन, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ना, शट डाउन ऑन कॉफी, शट डाउन दुकान शट डाउन करते, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब खराब हो, ठीक है। टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज करना, ठीक है, ठीक है। टर्न डाउन, आई टर्न डाउन देयर रिक्वेस्ट, ठीक है, देयर प्रपोजल, ठीक है। Yes, sir. In many accidents cause careless driving. Accident cause careless driving? No. Okay. Careless driving is the cause for of many of the accidents. Many accidents are caused by a careless driving. ठीक है। जो काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं वो केयरलेस ड्राइविंग के कारण होते हैं, ठीक है। मैनी एक्सीडेंट्स ये एक्सीडेंट ही कॉज नहीं करते कि एक्सीडेंट हो गया मतलब गाड़ी लड़ गई, अब केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हैं सर। Okay, ladies and gentlemen, we are done with 110 of the questions. 110 out of 120, only 10 remaining. Two big passages are there, and I'm really not a very big fan of passages, but yeah, we'll do it. Okay, do it anyhow. We'll do it. Okay, so let me just freeze the size, and meanwhile, you guys are supposed to like, comment, share, and subscribe. Okay. Please like, share, comment, and subscribe. Okay, will not iterate again. Yeah. अगर बुरा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता है मेरा टीचिंग स्टाइल, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कह दो, सर आप घटिया पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाने बोलोगे ऐसे पढ़ा दो, ठीक है। But I'm not a grammar Nazi. I tell you well before in advance. So if you want me to do subject plus verb plus object, that won't happen with me neither in English nor in maths. But I will teach you a way wherein कि जब आपकी 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ आपका जब एग्जाम एकदम सिर पे है, तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम को जा करके अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और ऐसा ना हो कि 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और कह रहे हो कि हम रिजल्ट देखेंगे। तो भाई यार, आप मुझे समय मान लो कि आपका नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि आप 120 क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो 110 100 के आसपास करके आओ, ठीक है। तब जा करके 70-80 मार्क्स मिलेगा, ठीक है मुझे। और इंग्लिश में 70-80 मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि इफ यू डोंट गेट 70 to 80 मार्क्स इन इंग्लिश, you are not getting your name in the UPSC list. Okay, so it's as simple as that. The calculation is very easy. कि अगर आपको 110 लाना है, तो आप 70 to 70 प्लस एटलीस्ट 65 जो इंग्लिश से कवर करो, तो आप 65 इंग्लिश को तभी कवर करोगे जो आप 100 to 110 110 to 115 भी रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट है वो कट पिट के आपको 90 के आसपास सही रखेगा, ठीक है। तो 80 के आसपास भी सही होगा, 67 70 के आसपास मार्क्स आए, समझे। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं, पैसेज 1 पढ़ते हैं, ठीक है। The third great defect of our civilization, the third
great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. इनको पता नहीं कि knowledge का करना क्या चाहिए, ठीक है? Since science has given us powers. Science has given us powers fit for the gods. Okay, powers that are fit for the gods. बहुत सारे पावर दी है, जैसे AI, ML, ब्लॉकचेन आज की डेट में बजवर्ड है. Yet we use them as small children. ठीक है, जबकि हम लोग इसको अपने बच्चों की तरह यूज करते हैं. ठीक है. For example, we do not know how to manage our machines. फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि हमें अपने मशीन को कैसे मैनेज करना है, ये हमें नहीं आता है. ठीक है. मशीन्स वेयर मेड टू बी ह्यूमैनिटी सर्वेंट. ठीक है, मशीन को जो ह्यूमैनिटी का सर्वेंट बनाने के लिए बनाया गया था. ठीक है, दे वर सपोज्ड टू बी द सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. येट मैन हैज ग्रोन अप सो डिपेंडेंट on them that they are in a fair way to become his masters. Okay. They कह रहा है बेसिकली ऐसे कि हम लोग इतना उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब मशीन ही हमारे मास्टर बन जाएंगे ऐसा. ठीक है. ऑलरेडी मोस्ट पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स. ठीक है, काफी सारे लोग जो है काफी जो है मशीन पर इतने निर्भर हो गए कि आप मशीन के लिए वेट करते हैं. ठीक है, कि दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन. ठीक है, जैसे किसी का मैसेज आना फोन पे, किसी का मैसेज आना, so basically that message comes from machine. Okay, so we wait upon the machine. Okay, that's that they are trying to do. And the machines are very stern. ठीक है, very stern मतलब बहुत जिद्दी है. ठीक है, लोग stern masters. ठीक है, machines are very stern masters. ठीक है, वो लोग बहुत वो है. ठीक है, कड़े मास्टर्स. They must be kept at the right temperature. ठीक है, उनको सही टेम्परेचर में रखने की जरूरत है. And if they do not get their meals when they expect them, ठीक है, they would grow sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around. ठीक है, अगर उनको उनके टाइम पे खाना नहीं मिला, मशीन का खाना बोले तो जो भी है उनका केयर मेंटेनेंस, उनको चार्ज करना वगैरह वगैरह, जो भी है प्रोग्रामिंग करना और जो भी है. ठीक है, मीन्स व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, जब उनको चाहिए, दे ग्रो सल्की. ठीक है, मतलब कि वो काफ़ी अजीब से हो जाते हैं, रिफ्यूज टू वर्क, काम करने मना कर देते हैं, बर्स्ट विथ रेज एंड ब्लो अप. ठीक है, मतलब कि काम करना बेसिकली बंद कर देते हैं, मतलब मशीन खराब हो जाती है. ठीक है, जब ट्रैक्टर को आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो कैसे वो काम करना, मतलब उसका जो एफिशिएंसी है स्लो हो जाता है. ठीक है, कार्बोरेटर बर्न हो गया वगैरह वगैरह. ठीक है, blow up and spread ruin and destruction all over. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can keep them in a good temper. वो सब करना होता है वेट करके जो उनको सही टेम्पर पे रखे. ऑलरेडी वी फाइंड इट डिफिकल्ट either to work or play without machine. हमारे लिए डिफिकल्ट है प्ले विदाउट मशीन. and a time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. जैसे एनिमल्स पे हम रूल करते हैं वैसे मशीन भी हमें एक दिन रूल करेगा. ऐसा पॉसिबिलिटी ऑथर कह रहा है कि हो सकता है. And this brings me to the point at which I ask, what do we do with all the time which the machines have saved for us? ठीक है, and the new energy they have given us. ठीक है, तो बेसिकली जब भी मशीन आती है ना तो चीज़ें क्या होती है ना, कि चीज़ें ना काफ़ी सीमलेस वे में होता है. ठीक है, मतलब मान लो कि हम मैनुअली 10 कॉपी चेक करते थे, मान लो मार्कशीट. ठीक है, आपकी यूपीएससी की चेक होगी, तो मान लो कि 10 लोग अगर उसको, मतलब एक लोग मान लो चेक कर रहे हो और 10 मार्कशीट को चेक करना है, तो टेक 1 hour 2 hours ऐसा. ठीक है, 100 क्वेश्चन की मान लो 120 क्वेश्चन की. बट वही ये काम मशीन जो है 2 मिनट में ही कर दिया, तो बाकी का 58 मिनट जो फ्री रखा. ठीक है, तो बेसिकली इंसान के लिए वो लीजर टाइम हो जाता है. ठीक है,
ये कह रहा है कि ये जो इतना टाइम जो इंसान के लिए सेव किया और ये इतना एनर्जी जो हमें जो दिया, ठीक है, कि अब हमें इसका क्या करना है? आर वी रियली पुटिंग इट ऑन सम जुडिशियस यूज टू दिस टाइम, और ऐसे ही हवा में है कि हम लोग सिर्फ जो है ये डेवलपमेंट के इंटेंगलमेंट में खुद ही फंसे जा रहे हैं, ऐसा इसका टोन है। ऑन द होल इट मस्ट बी एडमिटेड वी डू वेरी लिटिल, ठीक है, हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट वी यूज आवर टाइम एंड एनर्जी टू मेक मोर एंड बेटर मशीन्स which give us still more time, still more energy, ठीक है। हम लोग मतलब जो बचे टाइम में और भी मशीन क्रिएटेड है जो हमें और भी ज्यादा टाइम और लीजर देता है और भी ज्यादा एनर्जी देता है। एंड व्हाट आर वी टू डू विद देम, और हमें उससे क्या करना चाहिए? The answer, I think, is that we should try to become more civilized. Okay? We should become more civilized. Okay? For the machines themselves and the power which the machines have given us. Okay? For the machine themselves and the power which the machines have given us are not civilization, but aids to civilization. Okay? तो ये जो पावर और ये जो लीजर जो हमें दिए हैं, ये खुद ब खुद सिविलाइजेशन नहीं है, बट ये सिविलाइजेशन के आइड्स, क्या civilization के help. But you will remember that we agree at the beginning that being civilization meant making and linking beautiful things. Okay? Making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice equally among people. क्या मतलब ऐसा कहना है कि विद द एडवेंट ऑफ मशीन ये सारी चीजें नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंसान जो है थोड़ा कम सिविलाइज हो गया, ठीक है। और जो बट यू विल रिमेम्बर दैट वी एग्री एट द बिगिनिंग कि सिविलाइजेशन जो, ठीक है, कि बीइंग सिविलाइज्ड meant मेकिंग और लिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब खूबसूरत चीजें जोड़ने का, बनाने का, और हम हमें सही तरीके से जीने का, फ्री तरीके से सोचने, ठीक है, जस्टिस मेंटेन करने का, ऐसी काबिलियत होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के हम सिविलाइज्ड कहलाते हैं, ठीक है। बट विद द एडवेंट ऑफ मशीन दिस इज नॉट बीइंग हैपनिंग, ठीक है। So a person has a better chance today to do these things than she had before. Okay. A person has a better chance to do these things than he or she had ever before. कह रहा है कि किसी इंसान के पास जो है ये सारी चीजें कर लेने का आज जो चांस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिफोर। वाई? बिकॉज क्योंकि लीजर टाइम दिया, ठीक है, आपको पावर दिया, आपको बहुत एफिशिएंट बनाया मशीन, ठीक है। बट पूरे यहाँ पे पैसेज है, पैसेज का जो टोन है, जो डिस्कशन है, वो ये कह रहा है कि आर वी really being able to use it judiciously or not? Okay, that's the question. More energy he or she had ever had before. He or she had more time. He or she has more time. Present tense. More energy, less fear, and less to fight against. ठीक है। पहले के जमाने में हंटर गैदरर रहते थे, वूली मैमथ को मार करके फिर खाते थे, फिर अगला मारो, ठीक है। 50 लोग गए हंटिंग के लिए, 30 लोग ही वापस आए। तो बेसिकली ऐसा तो अभी तो है नहीं, ठीक है। दे आर मच मोर बेटर ऑफ है। इफ ही और शी विल गिव अस हिज टाइम एंड एनर्जी which is our machines have won for him more time to make more beautiful things, इस चीज पे एम्फसाइज किया है, दो बार बोले ब्यूटीफुल थिंग्स को लिंक करना, बनाना, to find out more and more about the universe, to remove the cause of quarrels between the nations, okay, to discover how to prevent poverty. And I think our civilization would undoubtedly be the greater as it would be more lasting than it has ever been. बेसिकली कह रहा है पूरे पैसेज में, ठीक है, आपको पैसेज को इतने डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ो, ठीक है, इतना अंडरलाइन करके मत पढ़ो, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं।
उसको पता चलेगा कि बेसिकली क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, और हमें बेसिकली इस पैसेज से क्या चाहिए। ठीक है, होता है इमोशनल नहीं होना। ठीक है, घूस घूस के पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब प्रिपरेशन फेज में पढ़ सकते हो, बट एग्जाम सिनेरियो में आपको 5 7 10 मिनट, 5 7 मिनट से ज्यादा नहीं देना। ठीक है, बस दैट वाज माय पॉइंट। सो जनरल टोन ऑफ द पैसेज जो है ये क्रिटिकल है। ठीक है, ऑथर कह रहा है कि मशीन इतना टाइम दे दिया, इतना आपको लीजर दे दिया, इतना आपको फ्रीडम दे दिया, पावर दे दिया, तो क्या आप उसको सच में सही से यूज कर पा रहे हैं? क्या इंसान ही तो मशीन के स्लेव तो नहीं हो, ऐसे वाला सीन। ठीक है, आगे बढ़ते 112। द यूज ऑफ machines has failed to bring us, ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम। स्पिरिचुअल फ्रीडम का अपनी बात तो है क्या? ठीक है, has failed to give, has failed to bring us spiritual freedom की कहीं बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ मे भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बट अगर इसकी एक्सप्लिसिटली बात नहीं हुई तो अपने इसको होल्ड में रखें। मोर लीजर एंड एनर्जी, नो, ये तो डेफिनेटली गलत आंसर है, क्योंकि इट हैज ब्रॉट यू मोर लीजर एंड एनर्जी। ठीक है, टाइम एंड एनर्जी। द यूज ऑफ मशीन हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन। हमें स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे कहता है ना कि हम लोग जो है आर नॉट सिविलाइज्ड। ठीक है, आई थिंक शुड बी ट्राई टू बिकम मोर civilized. Okay. The answer I think is that we should try to become more civilized. Okay. ये more civilized, लेकिन इनका ये मतलब है ना कि ये कल्चर सिविलाइजेशन आगे की नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी आपका आंसर हो सकता था, मे बी इट्स अ क्लोज वन, बट दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट। डी ऑप्शन इज डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट, सो डी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं 113। According to the passage, our civilization would be made greater if a man devotes his time to make more beautiful things. Yes. Hold on. आगे बढ़ते हैं. Man looks after and waits upon the machine. No. If machines are made and servant, no. ऐसा कुछ जरूर, ऐसा कुछ बात, ऐसा कोई नहीं है इस मशीन आदमी को नौकर बना ले ना, और जो आदमी जो मशीन को नौकर बना ले, ऐसा मतलब ये चीज पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं। ठीक है, man discovers how to prevent poverty. Yeah, man discovers how to prevent poverty is one aspect to it, but this is the wholesome. If man devotes his time to make more beautiful things, ठीक है, ये ज्यादा आपको ये दिस इज लार्जर सबसेट। ठीक है, दिस थिंग ऑप्शन डी इज योर स्मॉल सबसेट इनसाइड दिस। आगे बढ़ते, according to the passage, which one of the following description about machine is true? They already rule us like we rule animals. Okay. No, no. ये कह रहा है पैसेज में, कह रहा है कि टाइम आएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा, ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट इधर टू वर्क विदाउट मशीन। ये टाइम में कब? ठीक है, टाइम आएगा जैसे कि जैसे हम एनिमल पे रूल करते हैं, वैसे मशीन हम पे रूल करते हैं। ठीक है, अभी नहीं। Part of the description about them. They wait upon us attentively. No, we have to wait at all. We have to wait upon. They are inexorable masters. ठीक है, inexorable masters stern. ठीक है, inexorable मतलब कि जो छोड़ता नहीं। ठीक है, ये stern। ठीक है, मतलब उस्ताद वाली सी है। ठीक है, मतलब कुरान के 10 चक्कर लगा के मानी। ठीक है, ऐसा वाला सीन। So your answer is C. ठीक है, inexorable। ठीक है, जो आपको छोड़े नहीं। ठीक है, जो आपको कोई माफ नहीं करे ऐसा है। So they have made man more civilized. No, option A। आगे बढ़ते हैं। According to the passage, how do we use the powers bestowed upon us by science? Okay. According to the passage, how do we use the powers bestowed upon us by science? तो जो साइंस जो है हमें जो पावर्स दिया है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? जुडिशियसली यूज करते हैं क्या? नहीं। जुडिशियसली यूज करते तो फिर ऑथर इतना क्रिटिकल क्यों? क्रिटिकल नहीं होता ना, टेम्परामेंटली नहीं। ठीक है, डिवाइनली। ठीक है, ये पावर डिवाइड, ये पावर बेसिकली डिवाइन। ठीक है,
बट हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, बच्चों की तरह, ठीक है, चाइल्ड लाइफ, ठीक है। आप पढ़े होगे तो आपको याद होगा, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, ठीक है। ये कहता है कि हम लोग उसको बच्चों जैसा यूज करते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। तो दुनियादारी से मतलब नहीं है, सही गलत तो बस कर देते हैं। बस ये पैसेज आपको कह रहा है कुल मिला के कि मशीन टेक्नोलॉजी इज अ गुड थिंग, को लीजर दिया है, आपको पावर दिया है, आपको फ्रीडम दिया गया है, आपको उसका जुडिशियसली यूज कीजिए, आप इसको इरेशनली यूज मत कीजिए, ठीक है। आप उसको भगवान मत बनने दीजिए, आप ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है, समझे। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट 5 questions for the day and for the first part of 2023 CDS 2023 part 1 English paper. So we'll do it quick, ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जाम वाले मोड में करते हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि अपन लोग पहले ना क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट, plastic and plastic particles can be found, okay. Plastic pollution appears to be, plastic is considered an essential commodity because the word clogging, yeah, word clogging, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। Plastic is an essential commodity का बात कर रहा है। With multiple uses based on its key qualities of malleability, ठीक है। Malleability मतलब उसको it's a question of your CDS, ठीक है, कि which metal is the highest malleable, ठीक है। Ductility, malleability का होता है कि property by which you can uh, you know make it into a sheet, ductility, ठीक है। आपको उससे मतलब कितना पतला बना के आप उसको टाइट बना सकते हो, उसको कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो अब देख लेना मैलिबिलिटी डक्टिलिटी जो भी सही है, ठीक है। अब नॉट क्वाइट श्योर about the fact. So plastic is an essential commodity with multiple usage based on its key qualities of malleability, flexibility, and durability. Plastics are omnipresent. Omnipresent means in agriculture, fishery, renewable energy, transport, technology, retail, textiles, personal care products, and all the other sectors and industries that indirectly or directly affect our daily life. Okay. Plastic has indeed made our lives more convenient. Convenient की बात की है अंदर, okay, but has come at higher price than we imagine. Higher price than we imagine. Plastic pollution overflowing our lands, clogging which are waterways and infiltrating the ocean is primarily made of discarded items and packaging. Plastic lasts for hundreds of years, slowly disintegrating into smaller and smaller pieces, but never fully degrading. Indeed, one of the key perks of plastic is its longevity, and yet the plastic packaging of nearly every product we purchase and many plastic products themselves are intended to be discarded after its use. क्योंकि क्या प्लास्टिक का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उसकी लॉन्जिविटी, बट हम जब भी प्लास्टिक पैकेजिंग और जब भी हम लोग प्लास्टिक के कुछ भी जब खरीदते हैं या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और वी virtually any of the product that is made up of plastic, ठीक है, तो उसका जो यूसेज होता है, ठीक है, कि वो सिंगल यूज होता है, ठीक है। थ्रो अवे प्लास्टिक इज एन ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। थ्रो अवे प्लास्टिक इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्यों है, क्योंकि एक ही चीज में दोनों बातें कह रहा है। अगर आप सिंगल यूज ही कह रहे हो तो फिर लॉन्जिविटी क्यों कह रहा है, ठीक है, सही है ना। थ्रो अवे प्लास्टिक इज एन ऑक्सीमोरॉन, but it has become our sad, increasingly dangerous reality. Okay. Plastic pollution should make everyone angry. This is a crisis we see with the naked eye day in and day out. Plastic has been found on even the most remote, uninhabitable islands and the deepest parts of the ocean. ठीक है, ये आपको नीचे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।
because we can see it, we are more keenly aware of it, unlike some other forms of pollution. Okay? Because we can see it, we are more keenly aware of it, unless some other forms of pollution, like water pollution ज़्यादा दिखता नहीं, दिखता भी तो इग्नोर कर देते हैं, भाई पानी गंदा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन उतना मतलब नहीं है, बट प्लास्टिक कचरा जो है जगह जगह पे दिख जाता है, इसलिए जो है हम लोग थोड़ा इस पे जो है कीन रहते हैं, ठीक है, वी आर मोर कीनली अवेयर ऑफ, ठीक है, हमें इसको कीनली इसको देख करके हम लोग अवेयर आते हैं, ठीक है। In 2019, the World Health Organization (WHO) called for further studies on the impacts of microplastics on human health. ठीक है, WHO की कहानी शुरू हो गई है, and initially study hampered by a lack of adequate data concluded microplastics pose no danger at current levels. ठीक है, ये कह रही है कि initial studies जिसमें कि lack of adequate data था, वो उसका कंक्लूजन ये था कि ये जो है प्लास्टिक जो है दे डोंट हार्म अस, ठीक है, प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स इनफैक्ट दे डोंट हार्म अस, ठीक है, एट दिस लेवल, ठीक है, मतलब एट सर्टेन लेवल आपको हार्म नहीं करते। Although the WHO report was inconclusive about the effects of plastic on human health, other studies have linked the chemicals in plastics to negative health outcomes, including endocrine disruption. Yeah, endocrine disruptions. तो ये जो है ये आपकी ये डेबर जो है, ठीक है, डेबर 2020, यहाँ किसी का ये स्टडी होगा, तो यहाँ उसके स्टडी से ये चीज कोट किया गया है, ठीक है, तो डेबर के स्टडी से ये चीज कोट किया गया है कि the other studies have linked the chemicals in the plastic to negative health outcomes, including endocrine disruptions, ठीक है, तो इंसान के अंदर दो तरीके का ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड्स आर बेसिकली ग्रंथियां, ठीक है, they are like something like some bag like some storage like cell organelle, और उसमें आपका जो है कुछ कुछ कनेक्टेड पाइप्स होते हैं, ठीक है, ब्लड्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, तो उनका इन एंड आउट सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडोक्राइन और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है, तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर विच वन इज इंडोक्राइन, like the one with tube or without tube is exocrine, I guess. Okay, one with tube is endocrine and one without tube is exocrine. Okay. So that is like endocrine disruption. ठीक है, बट यहाँ पे इसका यूसेज बस वही है, जैसे ही समझ लो कि कुछ health से related है. We are not supposed to be a medical science graduate. Okay. So not a big issue. We are not supposed, we are not studying GS, we are studying English. Okay. थोड़ा जल्दी करते हैं, इंक्लूडिंग एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस, केमिकल्स, नेगेटिव हेल्थ डेवर करते हैं कि ये जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस करती है, क्या जो केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक में वो, और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करना, ये सब फॉर एग्जांपल इनके नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स। So plastic particles have been detected in drinking water and in food we eat, with a 2019 study commissioned by WWF estimating humans consume about 5 grams on one credit card in weight. Okay. एक क्रेडिट कार्ड का जो वेट होता है वो 5 ग्राम होता है, और प्लास्टिक every week, okay, like imagine eating your ATM card every week. Okay, that's what this author is saying. Yeah. Anyways, the possibility sounds and looks very funny though. Anyways, we have seen the devastating effects plastic has on marine life. For instance, unable to process ingested plastic waste pieces, seabirds and other sea creatures starve to death. Okay. Seabirds और other sea creatures जो प्लास्टिक खा के उनको बचा नहीं पाते, और बेसिकली वो starve to death हो जाते हैं, ठीक है। So we have seen sea turtles and other animals tangled in fishing nets and trapped in plastic packed drinks. Plastic pollution also
wrecks havoc on land, clogging drains, which are clogging again, drains and preventing rainwater from soaking into soil. ठीक है मतलब अब मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, अब इस पे पूरा प्लास्टिक का एक लेयर आ गया तो वो फिर ग्राउंड वाटर अब्जॉर्प्शन में तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ना, तो ये चीज बता रहा हूँ, which leads to flooding. Yeah, which leads to flooding. Terrestrial creatures also suffer the effects of plastic waste, with some getting trapped in discarded plastic bags, suffocating to death, and some, like owls, okay, even eating them, okay, or other animals, yeah, other animals. कुत्ते बिल्ली भी यार मतलब खाने पीने खोज में ये खा लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है. Plastic has distressed effect. Now we are the question. Okay. Plastic has distressing effect on only on humans, no, only on marine life, no, okay, both humans and marine life. ये तो बढ़ता है पूरे पैराग्राफ. Okay. Plastic and plastic particles can be found in the ocean depth. Yes. क्या पीछे आगे पढ़ लेना. Okay. On mountain tops अभी कहीं बात नहीं किया गया है. In metals and minerals नहीं, क्या metals and minerals में प्लास्टिक कहाँ से होगा, logically possible नहीं, क्या as per the paragraph आप यहाँ पे पढ़ोगे वापस जाओगे आपको पता चलेगा क्या आगे, ठीक है. फूड वी ईट एंड ना मतलब ऐसा है कि कह रहा है कि सी बर्ड और सी क्रिएचर भी है, तो इसको खा करके उनको इंजेस्ट नहीं हो पाता प्लास्टिक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओशन डेप्थ में भी हो, ठीक है. हाँ वर्चुअली ये चीज है कि प्लास्टिक हर जगह पाया जाता है तो ऑन माउंटेन टॉप्स भी हो सकता है, ठीक है, बट देन दिस ऑल ऑफ द अबव विल बी इनकरेक्ट बिकॉज मेटल्स और मिनरल्स, मेटल तो ऑब्वियसली इट्स लाइक वन एलिमेंट, okay, or maybe molecules of some other compound maybe, okay, but then you won't find plastic in metals and minerals generally. Yeah. So all of the above is also not the answer. Okay. So plastic pollution appears to be an epidemic. Epidemic मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फैलने वाली बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है. पैंडेमिक हर जगह, ठीक है, omni present, ठीक है. A small menace, no, a temporal health issue, ठीक है. टेम्पोरल मतलब which is very grave, ठीक है. टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल हेल्थ इश्यूज मतलब वेरी important, ठीक है, टेम्पोरल. So yes, it is a temporal health issue, ठीक है, but then appears to be जो पूरा जो सेंस जो पूरे पैसेज में है वो ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह है, यहाँ भी है. कई बार बात हुई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, कई बार बात हुई सी बर्ड्स का, सी एनिमल्स का, ह्यूमंस का, ठीक है. तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हर जगह है, कि ये प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह है. So that's why we'll go with the pandemic as an our option. Okay. Pandemic is something, a disease which affects a very huge area. ठीक है. Epidemic a particular area. ठीक है. दिल्ली में महामारी हुई, ठीक है. मतलब दिल्ली में कुछ मान लो कोई बीमारी हो गया, प्लेग फैल गया फॉर एग्जाम्पल, लंदन में प्लेग फैल गया फॉर एग्जाम्पल. I mean, God, pray to God that doesn't happen ever. Okay. But it has happened to some world cities of the world. Yeah, to read the history, you will get to know. So those things are epidemic. Okay, epidemic of Rome. Okay, pandemic मतलब it's not, पूरे दुनिया में एटलीस्ट एक आध कॉन्टिनेंट में तो होना चाहिए ऐसा. So we move on to the next question, ladies and gentlemen. Plastic is considered an essential commodity because it has made our lives easier. It has caused health hazard. It clogs natural ecosystem. It has multiple uses in our daily usage. ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं होता. हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कहाँ पे.
Plastic is an essential commodity in multiple uses based on key qualities of malleability, flexibility, and durability present in agriculture. Plastic has made indeed our life more convenient, but it has come at higher price. Be convenient. Okay, it has made our life convenient. Multiple uses to have. Okay, plastic is considered an essential commodity. Okay, essential commodity क्यों है? क्योंकि ये essential commodity इसलिए है क्योंकि इसका जो है multiple usage है. ठीक है, usage है. Multiple commodity. Okay. अगर ये पूछता कि what has been the impact of plastic in our civilization, तब हम ये वाली ऑप्शन चूज करें. Okay. It has made our lives easier. Yes, indeed, it has made our life easier. Okay. But plastic is considered an essential commodity. ये essential commodity क्यों है? क्योंकि ये जो है ये हर जगह यूज होता है. एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, टेक्सटाइल में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, हर जगह इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में यूज होते हैं. ठीक है, इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मल्टीपल यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, नॉट इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर. The answer to this question will not be this. Yeah. हाँ, ये पे अगर पूछता है कि what has been the effect of plastic in our human life, तब फिर हम इसका ऐसा हम सोच सकते हैं. ठीक है, but then this is a weak answer. ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Let's move on to the ladies and gentlemen, the last question, the last show for UPSC, CDSC 2023 first part of the question paper, of the English question paper. So we'll be winding down our 3 video series in English with this question of ours. So please like, share, comment and subscribe. Okay, we work really hard for it. Okay. And yeah, we work really hard for it, man. Seriously. Yeah. Please show some love. And yeah, as you would have, so we'll just wind it down very soon. Okay. So as you have guessed it very rightly, clogging का मतलब होता है obstruction. ठीक है, flow opening, clearing नहीं है. ठीक है, so gentlemen and ladies, with this we come to an end of our 3 video series of English question paper of UPSC CDSC 2023 part 1. And similarly in mathematics we will have rest of the 2 videos coming in, wherein I will be solving question number 51 to 75 and from 76 to 100. Meanwhile, I request you, those of you watch my video, please like, share, comment and subscribe. Okay. Okay. Chalo, ladies and gentlemen. Bye. Have a nice day.